back on Midday with inspiring people who are leading a change, and today I am with the co-director of Apex Risk Management, Mr. Sanjay Mishra. Sir, a very warm welcome to Midday. You are leading such a big business, and of course my first question to you is around leadership. I mean, आपके पास कितने सारे, you have a team of like hundreds under you. So what do you think, who is a leader and how do you drive your leadership? What is your style? Thank you so much. Thanks a lot for inviting me here. Thanks Midday, and thanks to you that you're making me so comfortable that I can exchange my ideas with you. The first thing, the disclaimer I would like to say that whatever I am going to say or whatever the presentation will be, it is based on my opinion and purely my opinion. So anyone who is going to be judgmental, in fact, I may be wrong also. So the disclaimer is that please don't take any of my words seriously. If you like this, if you like my logic, it's okay. Otherwise, it's okay also in that way also. So yeah, a very interesting and very brilliant question that you have put, in fact. Yeah, it has been 26 years working with my team. 26 साल हो गए हम लोग अपने टीम के साथ काम करते हुए. Today we are having more than 300 to 400 in fact people working with us and as a team partner. So leadership basically is something which doesn't come with the qualification. It doesn't come with the experience. It is basically जो मुझे समझ में आता है, leadership is something that is inbuilt in your habit. Leadership is something that it is inbuilt in your brain and your attitude towards the life. आप अगर बहुत अच्छे learner हैं, सीखना जानते हैं, you are a leader. If you want to impart, if you are imparting your knowledge with others, sharing it with the others, if you are making people grow with you, that means you are a leader. And the leadership quality is something that changes from situation to situation. So suppose मैं इसको और easy बना देता हूँ. जैसे एक कोई senior police officer है and if he is posted somewhere in any city जहाँ पे terrorism का बहुत ज़्यादा खतरा है या फिर law and order के बहुत खतरा है, तो वो as a senior police officer वहाँ पे उसका जो modus operandi होगा वो काफ़ी different होगा. He may go for encounters, he may go chasing the you can say जितने भी hooliganism type के लोग हैं उनको, या फिर बहुत सख्ती बरतेंगे. लेकिन the same person as a in charge, या आप कह सकते हैं as a leader, if he is posted in some you say a Naxalite area जहाँ पे नक्सल लोग हैं. अब नक्सलाइट की जो प्रॉब्लम है वो सिटी के बाकी गुंडों के प्रॉब्लम से अलग है. नक्सलाइट्स आर दोज हु आर फाइटिंग फॉर देयर राइट्स, या फिर बहकावे में वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं. मोस्टली वो मतलब इनोसेंट होते हैं. देयर हिज रोल विल बी समथिंग वेरी डिफरेंट. ऐसे बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हुए हैं जो लोग वहाँ पे जाके एकदम वहाँ पे उनका रोल होता है कि उनको अवेयर करें वो कि उनके राइट्स क्या हैं, उनके राइट्स कैसे दिलाए जाएं, उनको कैसे सरेंडर करवाया जाए और मेन स्ट्रीम लाइफ में लाया जाए. So leadership quality is something that I think that flows from one end to another, and it is completely in sharing and giving. If you are a leader, you must believe in giving something. It's not in gaining. Leadership के साथ सबसे बड़ी बात ये होती है कि power आता है आपके पास. And for me, and what I have realized in all these years, I have my own share of struggle. हर आदमी का अपना शेयर होता है, स्ट्रगल का शेयर है. तो जो मैंने सीखा है कि इनफैक्ट पावर इज समथिंग दैट इज टू यू कैन से इम्पार्ट पावर टू अदर, या फिर एम्पावर करने के लिए है आपको पावर, दूसरे लोगों को एम्पावर. यू कैन एम्पावर अदर्स. पावर इज नेवर टू कंज्यूम. अगर आप कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं तो इट बिकम्स पॉइजन एंड इट किल्स यू. सो नाउअडेज इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द थिंग जो देखता हूँ मैं, या फिर हमारे नए जनरेशन्स भी हमारी कंपनी में आ रहे हैं या फिर हमारे दूसरे वेंचर्स में आ रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोग पावर ग्रीडी बहुत होते हैं. मतलब लीडर होने के साथ साथ वो उनको ऐसा लगता है दे बेसिकली दे आर मेंटली वेरी यू कैन से सेटल्ड विद दिस आइडिया दैट इफ दे आर अ लीडर ऑफ दे और इफ दे आर होल्डिंग एनी पोजिशन दे शुड गेट मोर एंड मोर पावर. उनको लगता है कि इस डिपार्टमेंट में पावर है तो वो मेरे अंदर होना चाहिए, ये डिपार्टमेंट मेरे अंदर हो.
मतलब अपने आप को मोर पावरफुल दिखाना है, लेकिन ये लीडरशिप बिल्कुल नहीं है. दिस टाइप ऑफ मेंटालिटी, दिस टाइप ऑफ लीडरशिप कोलैप्सेस. सर ये विजडम आप में शुरू से था कि या ये ओवर द इयर्स इट हैज़ कम टू यू थ्रू ऑल द एक्सपीरियंसेस? वक्त सिखा देता है सब. इनफैक्ट मेरी जो शुरुआती दिन थे हम लोगों के, वो ऐसे थे कि एवरी डे वी यूज टू वेक अप टू सम और अदर चैलेंजेस. फैमिली सिचुएशन ऐसा था, फैमिली बहुत बड़ी थी, अर्निंग मेंबर्स थे ही नहीं, मतलब बहुत कम थे. बहुत छोटा था मैं जब, तो मैं पैदा बिहार में हुआ एंड आई वॉज शिफ्टेड टू कोलकाता जहाँ मेरे दादाजी रहते थे. एंड ही वॉज द ओनली पर्सन, ओनली ब्रेड विनर. सो उनके भी अपने हालात थे, कभी वो बीमार पड़ जाते थे या उनके साथ और भी कुछ वारदातें ऐसी हो गई कि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल का सामना करना पड़ा. और वो एक छोटे से रूम में हम लोग रहते थे, छोटी सी चौल में. आज भी वो चौल है कोलकाता में. एंड आई कीप विजिटिंग कोलकाता ऑलवेज, बिकॉज मैं वहाँ अपने आप को ढूंढता हूँ. तो वहाँ पे हम लोग के पास मतलब हर रोज़ सुबह रीज़न होता था कि आज तो कुछ ना कुछ होना ही है. मतलब कभी बारिश हुई है तो छत टपक रहा है, तो छत पे जाके वो सेलिंग करनी है, सब सही करना है. पानी आता नहीं था अंदर, तो बाहर से पानी लेके आना होता था. तो हमारे भाई लोग पानी, कुछ लोगों की ड्यूटी थी जो पानी भरते थे. आपको सुबह कहीं जाना है, स्कूल जाना है अगर, तो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठ के आपको बाहर टॉयलेट्स के लाइन लगाने होते थे. सो वो लाइफ से हम लोग गुजरे हैं. और ऐसा नहीं था कि वो एक दिन दो दिन या एक कुछ दिनों की बात थी. इट हैज़ बीन ईयर्स एंड ईयर्स. And look at you now, I mean your family would be so proud of you. That I don't know. In fact, my mom and dad, I was very attached to my mom. And you can say everyone, जो भी बच्चे होते हैं थोड़ा ममा's boy होते हैं, तो I was attached with them. So मेरे लिए बहुत बड़ी जो बात थी वो ये है कि मैंने मतलब लाइफ का एक स्ट्रीम देखा जो आज मैं रियलाइज़ करता हूँ. और अपने जैसे दो जनरेशन्स को देखा मैंने. मेरे ग्रैंडफादर, माय ग्रैंडपा, माय ग्रैंड मॉम, then my father and mother. So this two generations, and my uncle also to some extent. So I have seen these two generations that they were never happy. उन लोगों ने वो कभी खुश हो ही नहीं पाए. They were not able to achieve. They ended their life in just giving support to the family या upbringing करने में family के. So that is the basic Survival thing. में. Yeah, survival. And when I was able to do something, it was too late. In fact, I lost my grandpa. Then I lost my grandmom, and then mom and dad. So no one lives with you, but memory lives with you. And there are many things that you can learn from that. उससे आपको समझ में आता है. So जब ऐसे सिचुएशन से आप निकल के आते हो जहाँ से हमेशा आपने बहुत ही चैलेंजेस देखा हो या बहुत ही ज़्यादा सैडिस्टिक थिंग्स देखा हो, तो जब आपके पास खुशी आती है तो आप चाहते हो उन लोगों से शेयर करना. जब वो लोग भी आपके पास नहीं है, इट्स अ वेरी फिलॉसफी, वो लोग भी आपके पास नहीं है, तो कई बार यू डोंट इन्जॉय व्हाट यू हैव अर्न. सो इट इज़ लाइक दैट. तो मी और माइंड टाइप ऑफ मैनी पीपल मे बी देयर. सो थिंग्स आर हैपनिंग, चीज़ें बदल रही हैं, बहुत अच्छा हो रहा है. लेकिन जो सेटिस्फेक्शन लेवल होना चाहिए किसी भी अचीवमेंट का, वो बेसिकली मिसिंग है. एंड ठीक है, तो आई made up my mind that when I was struggling, when I was roaming around city to city, I was in Kolkata, from Kolkata I came to Delhi, Delhi से और भी एक दो शहरों में आना जाना हुआ मेरा for the job and everything. So I was not getting any kind of support. Then there was a time when my family was also fed up कि यार he is the eldest son of the family and is not able to do anything. तो वो जो feelings आई, then I slipped into depression and I used to go alone to the hospital and everywhere. So वो जो एक feeling मेरे साथ आई, तो हमेशा दिल में आता था कि if God will support me or someday if through my hard work if I am going to do something, then I will not let the things happen like this. मैं at least मेरे पास जो भी आएगा मैं सुनूंगा उनको. And God gave me chance.